Students, so today we are going to start exercise 5.3 16th sum. Till 15th we have discussed in the previous video. ठीक है, उसमें किसी तरह के डाउट हो तो यू कैन कमेंट एनी टाइम और प्लीज़ सी दैट वीडियो देन कम टू दिस वीडियो बिकॉज यहाँ 16 से स्टार्ट हो रहा है तो 15 तक आपको समझना बहुत ज़रूरी है. नाउ आई विल जस्ट शो यू द 16th sum because 16th sum is a word problem. So I will just show you on camera so you can see the 16th sum here. I think it is visible. So if you see in the 16th sum, I just take you to this one. A sum of rupees 700 is used for 7 prizes to the student of a school and for their overall academic charges. Overall academic performances. If the each prize is 20 rupees less than its preceding price, find the value of each prize. Right? So you can see in this particular question 700 is the total prize money and this prize money is distributed in 7 students, right? And each money for the position is decreasing with the 20 rupees, so it means somewhere it is forming an AP. Now I am coming to the board, so we will solve this sum, right? So I am just taking a roughly figure here. You can understand that 700 rupees is the amount which is distributed in the 7 prizes, right? Now 7 prizes means, if I just see 1 2 3 4 5 6 and 7, so we will write here let total prize money is equal to rupees 700, and first prize money, suppose I am saying it is, suppose A, X, you can say that X. So next will be X minus 20, next 40, 60 means 20 20 we are making less, 100 and 130. So we will write here that the money distributed for first prize. So first prize को दिया तो हमने माना वो X है. The money distributed to other positions are X minus 20, yes, second. Next is X minus 40, X minus 60, it is rupees. Then X minus 80, then X minus 100, and then X minus 120. Now I think it is easily understood that the sum of all these monies will be equal to 700. So I think we can make an equation here. Right? Now I hope you all have understood. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर. आपको सिर्फ x x को ऐड कर देना एक साथ. You will see that कि there are 7x, 1 2 3 4 5 6 7. So we can write 7x, and these all numbers which are all are containing minus. So we are putting here minus common, and all the numbers you can write in this way. Now अब कुछ बच्चे कहेंगे सर AP का तो यूज ही कहाँ हुआ. यहाँ पर आप चाहो तो AP का यूज कर सकते हो. आपको पता है ये AP है, ये फर्स्ट टर्म है, 7 टर्म्स यहाँ पर टोटल है, और आपको पता है डिफरेंस भी कितना है, 20 का डिफरेंस है. तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो n/2. मैं पहले एक काम करता हूँ आपके लिए, फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ. Sn जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो n कितना है इस केस में, 7/2, and 2 into 20, or you can do a plus n. So 20 plus 120, right? Now it will be 700, 7x, and it will be 7/2 into 140 and 700. करेक्ट. ये आपके लिए देखिए 70
और 490 आ गया आपको ये। तो 7x इज इक्वल टू 700 प्लस 490 एंड इट विल बी 1190। सो x इज इक्वल टू दिस 7 1 7 170 रुपीज। तो सबसे पहला जो प्राइज मनी दिया होगा फर्स्ट पोजीशन को वो 170 रुपीज दिए गए होंगे, राइट। अब यहाँ से क्लियर हुआ कि 170 रुपीज का प्राइज मनी दिया गया। उसके बाद आपको समझ में आ गया कि सेकंड वाले को कितना मिला होगा 170 माइनस 20, मतलब इसको अगर 170 रुपीज मिले होंगे तो इसको 150, इसको 130, 20 कम करते जाए बस, इसको 90, देन 70, देन 50। आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपको दिखेगा कि 700 आ रहा है और वहीं से आपका आंसर वेरीफाई होगा। लास्ट में फाइनली आप लिख देंगे द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फर्स्ट सेकंड यानी फर्स्ट टू सेवेंथ पोजीशंस आर this one 170 150 130 like this. Now I am coming to the 17th question. 17th question students is it's also very easy. 17th question you can see in a school students thought of a planting tree in and around the school to reduce air pollution. अभी तक इस स्टेटमेंट में हमारे लिए कोई ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट आया नहीं है। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant as the same as the class, right? Okay, यहाँ पर बात ये हो रही है कि अगर 8th क्लास का बच्चा है, 8th क्लास की बात हो रही है तो वो 8 प्लांट्स लगाएगा। 7th क्लास का बच्चा है तो 7 प्लांट्स लगाएगा as the class in which they are studying, right? A section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees, for like in the same way for 12th they will plant 12 trees. There are 3 sections in each class and how many trees will be planted by students. Now I think I hope this particular part is clear. Now I am coming to the question solution. देखिए एक रफली पहले समझते हैं इस चीज को। हमको पता है कि फर्स्ट से स्टार्ट हो रही है इस क्लास एंड 12 तक जा रही है, तो सेकंड भी है बीच में, थर्ड भी है, फोर्थ है, फिफ्थ है, लाइक दिस। बट उसने ये भी बोल दिया कि हर एक क्लास में 3 सेक्शंस हैं। ये भी 3 सेक्शंस लेके चल रहा है। टिल 12th के 3 सेक्शंस हैं जैसे जनरली स्कूल्स में होते हैं। अब फर्स्ट क्लास में हर एक सेक्शन कितने प्लांट लगाने वाला है? एक एक। तो ये भी एक प्लांट लगाएगा, ये सेक्शन एक प्लांट लगाएगा, ये सेक्शन एक प्लांट लगाएगा। इसमें ये 2 लगा देगा, ये 3 ऐसी 4 अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ से टोटल प्लांट कितने लगे? 3, यहाँ से 6, यहाँ 9, इससे 12, और अगर मैं यहाँ आता हूँ तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से 36 प्लांट लगे। अब देखिए समझना ये नहीं है कि क्या हुआ, समझना ये है कि जो ये पैटर्न बना ये क्या कोई सीरीज बन रही है या जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एपी क्या उसके जैसा कुछ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। अगर आप फर्स्ट नंबर को देखते हैं तो वो 3 है, सेकंड नंबर 6 है और थर्ड नंबर 9 है। अगर मैं 3 नंबर को ही कंसीडर करके चलता हूँ तो मुझे 3 का डिफरेंस मिल रहा है। तो इट मीन्स आगे भी मुझे 3 का डिफरेंस ही मिल रहा है, यहाँ पर भी देखने में पता लग रहा है। तो इट मीन्स कि ये एक एपी बन गई। अब जैसे ही एपी बन गई अब आपके लिए प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में स्टूडेंट्स सिर्फ यही बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको एक एपी फॉर्म करनी है। उसके बाद तो एक क्वेश्चन पुराने जैसा हो गया, राइट। इन क्वेश्चंस में समझना है आपको कि एक्चुअली में हमें करना क्या है, क्या अप्लाई करना है, कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, राइट। अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड। हाउ मेनी ट्रीज का मतलब कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने लगे, ट्रीज कितने लगे, मतलब आपको सम निकालना है, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले लिखा जाएगा, ये देखिए रफली आइडिया जरूर बनाएं अपनी नोटबुक में या जहां पर भी आप रफ आइडिया बनाएंगे तो आपको बहुत हेल्प होती है उससे। अच्छा ओके, सबसे पहले लिखते हैं द नंबर ऑफ प्लांट्स और ट्री आर देयर, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय सेक्शन is equal to what? Category of section. Right? Mean number of plant depends
on category of section. Category means you can understand it is first, second, third or whatever, right? Yeah, according to the number of class. Now, so let number of, okay, I am not writing number of plant, I will write here total number of sections, total number of classes is equal to 12. You can write here first to 12, so that ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास कितने चीजें हो रही है, कितनी क्लासेस आ रही है. नंबर ऑफ सेक्शंस इन ईच क्लास, वी नो दैट 3, राइट. अब मैं यहाँ पर एक क्लास का एग्जांपल लेने वाला हूँ, एक या दो लेंगे और फिर लास्ट वाला ले लेंगे. नंबर ऑफ प्लांट्स या ट्रीज, हम बार बार ट्री ले रहे हैं तो ट्री लेने ज्यादा अच्छा है. ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1. अब यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं क्लास 1 की बात कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर तीनों सेक्शंस इंक्लूड कर दिए हैं. इंक्लूडिंग, आई एम राइटिंग हियर इंक्लूडिंग ऑल सेक्शंस. तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 1 + 1 + 1 3 ही आएगा, बिकॉज ईच सेक्शन विल प्लांट 1 ट्री. Now, number of trees planted by class 2, including all sections, you will understand it is 6. Similarly, class 3, you can understand it will be 3 + 3 + 3, it is 9. And now I am coming to till 12th, right? So it will be 12 + 12 + 12, it is 26. At last, what you will do, you will write AP. This is the AP, and this one. Clear? Now I am coming to the next part. Next part is what we have to do. We have to find the number of trees, right? So total number of trees is equal to 3 + 6 + 9 and so on. It will be till 36, right? Okay, how many numbers will be here? 12. obviously बात है, 12 क्लासेस है तो 12 नंबर ही मिलेंगे. तो कैन यू फाइंड द सम? व्हाट इज द फॉर्मूला? एक और बार ले लेते हैं. देखिए, मैं बार बार इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ. फायदा ये हो रहा है कि मुझे लास्ट टर्म भी मिल जा रही है. तो टोटल नंबर कितने हैं? 12. ये आ गया. ए मेरे पास है, कितना है? 3 है और 36 है. देखिए 6 आ गया, 6 ओके इनटू 39. 234 trees will be planted by school, है ना. तो ये इस क्वेश्चन की खासियत थी कि आपको समझना था एक्चुअली में कि वो डिमांड क्या कर रहा है, एपी कैसे जनरेट हो. आपको सेक्शंस को भी इंक्लूड करना है, राइट. स्टूडेंट्स, ये सम बड़ा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर मैं जो बात करने जा रहा हूँ, ये 18 क्वेश्चन हो गया हमारा. ठीक है, 18 क्वेश्चन में फिगर आप देखेंगे, इसमें मैंने जो बना दिया ये स्पाइरल दिख रहा होगा आपको, राइट. क्वेश्चन में बोला गया है कि स्पाइरल है और स्पाइरल की खासियत होती है कि जहाँ से स्टार्ट हुआ ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये क्या होता है, हाफ सेमी सर्कल के बाद, देख रहे हो आप, हाफ सेमी सर्कल के बाद जो सेकंड सेमी सर्कल बनाता है वो इससे बड़ा बनता है. फिर जो नेक्स्ट वाला बनेगा वो और बड़ा बनेगा. फिर नेक्स्ट मीन्स आफ्टर ईच सेमी सर्कल द रेडियस विल गेट चेंज. दिस इज द स्पाइरल. इस स्पाइरल में ये चीज होती है, वो बढ़ता चला जाता है, राइट. ये पैटर्न है इसमें. अब उसने क्या किया है, उन्होंने क्या किया, रेडियस दे दिया है पहले वाले सेमी सर्कल का. मतलब ये क्या कह रहा है, इसका रेडियस है 0.5. फिर उन्होंने कहा कि जो बड़ा वाला होगा ये, इसका जो रेडियस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ रेडियस को, इसका जो रेडियस है वो 1.0 सेंटीमीटर बोल दिया है. कितना बढ़ गया ये देख रहे हो, पहले 0.5 था, अब ये 1.0 हो गया सेकंड वाले के लिए. अब थर्ड वाले के लिए उसने बोल दिया कि 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस इस वाले सेमी सर्कल के लिए. फिर इसके लिए 2.0 सेंटीमीटर. तो आपको पैटर्न समझ में आ गया. पैटर्न में क्या हो रहा है, 0.55 सेंटीमीटर की रेडियस इंक्रीज हो रही है, राइट. ये तो था क्वेश्चन की बात. फिर उसने बोला जो स्पाइरल है वो ऐसी सक्सेसिवली बढ़ रहा है एंड यू हैव टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ 13. ऐसे हमारे 13 स्पाइरल्स की आपको लेंथ निकालनी है.
कि सपोज आप थ्रेड बना रहे हो और ऐसे ऐसे कितना थ्रेड लग जाएगा। तो 30 स्पाइरल्स की यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो आपको तुरंत यहाँ पर क्लिक कर जाना चाहिए। यहाँ पर हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो ये थ्रेड बनेगी, ये जो बन रहा है ये सरकमफ्रेंस ही है। तो किसका है, कितनी सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस ऑफ 13 सेमी सर्कल्स। मैं इसको अगर ऐसे लिखूं तो ज्यादा बेटर है कि सरकमफ्रेंस निकालनी है 13 सेमी सर्कल्स की। ये हो गया समझने वाली बात। अब आ जाते हैं लिखने पर कि लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। रेडियस कितना है फर्स्ट सेमी सर्कल का, 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आप ये मैं यहाँ पर सीधा इसका सरकमफ्रेंस भी निकाल लेता हूँ। सो सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, राइट, कितना हो जाएगा C1। मैं R1 और C1 ले लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। आपको पता है सरकमफ्रेंस कितना होता है, सरकमफ्रेंस हो जाएगा हाफ, टोटल होता है 2πr, और 2πr का हाफ क्योंकि सेमी सर्कल है, तो ये हो गया πr। ठीक है, πr1 ज्यादा बेटर होगा, पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर। मैं देखिए अभी मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, ये निकालिएगा भी नहीं, निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, काफी पैटर्न नहीं मिल पाएगा आपको। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, रेडियस ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल, यस 1.0। सो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, पाई इंटू R2, राइट। सो पाई इंटू 1.0 सेंटीमीटर। अब ये देखिए, अगर मैं इसमें और इसमें बात करता हूँ तो पाई अपनी जगह पर है, सिर्फ रेडियस चेंज हो रही है, तो इसका मतलब थर्ड वाले में क्या होगा। अब मैं डायरेक्टली आता हूँ, सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड वाले का पाई इंटू 1.5, यस। सिमिलरली अगर मैं 13th वाले पर आता हूँ, 13th वाले पर मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं उसको ब्लैंक मार देता हूँ, क्योंकि या तो आप निकाल लीजिए, ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर आप नहीं निकालना चाहते हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए एक्चुअली, मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि 13 का निकालना है, राइट। अगर कोई छोटा नंबर होता कि 5th या 6th पर होते तो एक बार को हम सोच भी सकते थे, बट अगर हमें लग रहा है कि 13 तक जाने में हमारा टाइम वेस्ट होने वाला है, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, टोटल लेंथ ऑफ 13 स्पाइरल्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स। पहले हम फर्स्ट वाला स्पाइरल की लेंथ बताएं कितना बैठेगा सेमी सर्कल का, पाई इंटू 0.5, सेकेंड पाई इंटू 1.0, थर्ड पाई इंटू 1.5, ऐसे ऐसे चलेगा स्टूडेंट्स। कहाँ तक चलेगा, 13 तक। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर एक सीरीज बनाया है जो 13 तक दिखा रहा है इसको, राइट। अब कुछ नहीं करना है, आपको दिख रहा है पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि सिर्फ कांस्टेंट अंदर रह जाएंगे और मैं सिर्फ अंदर बाहर एक पाई रख दूंगा। ओके, अब इस पैटर्न को समझने की ट्राई करिए। ये पैटर्न सीधा एपी बना रहा है क्योंकि 0.5 का डिफरेंस के साथ आगे बढ़ रही है सीरीज, राइट। और आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2। व्हाट इज n/2, n हो गया हमारे लिए 13, सो 13/2। ओके, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, ओके फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2a + n - 1 × d। अब यहाँ देखिए जरा, n की वैल्यू 13 है, a मुझे गिवन है, d भी गिवन है, इसलिए मैं कह रहा था आपको 13 की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस में, करेक्ट। अब यहाँ पर समझते हैं बात को कि अगर मैं 13/2 रखता हूँ तो 2 × 0.5 + 13 - 1, एंड व्हाट इज d, d इज 0.5। ये मेरे लिए वैल्यू निकली है, राइट। Now I am coming to the point. Okay, now I am removing this one. Please see the calculation part I am solving here. Pi, अब देखिए 13/2 को मैंने एज इट इज रखा क्योंकि दोनों भारी हैं, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 और 0.5 के मल्टीप्लाई करेंगे आपको 1 मिलने वाला है, और यहाँ पर मिलेगा 12 को जब आप 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आप 22/7 रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 ये 6 हो गया, राइट। अच्छा, 22/7 दिस इज 13/2, और यहाँ से आपको 7 मिल रहा है, 7 से 7 कैंसिल होता है, 2 से ये 11 आता है, 11 3 × 33 एंड 14।
इतने सेंटीमीटर की आपको वो स्पाइरल मिलेगी स्टूडेंट्स। तो ये आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट था। अगर आप इसको सिंपल वे में करते विदाउट यूजिंग एपी तो ये बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन बन जाता है। तो एपी का बेनिफिट ही यही है कि आपकी कैलकुलेशन को ये कहीं ना कहीं ईजी करता है, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप देखें इसमें लॉक्स लगे हुए हैं, आपने देख रहे हैं यहाँ पर 200 लॉक्स का ये स्टैक्ड है। लगा कैसे है कि सबसे जो नीचे वाला बॉटम है, जो सबसे नीचे वाला बॉटम है ये, इसमें 20 है, फिर उसके ऊपर एक लॉक कम कर दिया गया, 19 कर दिया, फिर 18 कर दिया। इस तरह से इसका ढेर लगता जा रहा है, राइट। एक स्टॉक बन गया है। अब आपको ये चेक करना है कि हाउ मेनी रोज आर इन 200 लॉक्स, मतलब ऐसी कितनी रो लगेंगी अगर हम ये पैटर्न फॉलो करते हैं। तो आप समझ गए होंगे हाउ मेनी रोज का मतलब है कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है वो, राइट। अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, जब 200 लॉक्स की बात हो रही है, आपको एक चीज क्लियर हो गई कि आपको नंबर ऑफ लॉक्स पता लग गए। मींस टोटल नंबर ऑफ लॉक्स कितने हैं? 200 है। मतलब हमारे लिए ये एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एसएन है, मींस टोटल नंबर ऑफ लॉक्स। एपी की भाषा में बात करेंगे तो ये सम दिया हुआ है, जो पहले निकालना था और आज दिया हुआ है। ओके, नाउ 20 लॉक्स आर इन द फर्स्ट बॉटम। अगर मैं लॉक्स की बात करूं तो फर्स्ट वाले में फिगर तो मैं नहीं बना पाऊंगा, इट्स 3D फिगर। तो जो अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात करता हूं, फर्स्ट लाइन में 20 है, दूसरी लाइन में 19 हो गए, तीसरी लाइन में 18 हो गए, चौथी लाइन में 17 हो गए। इस तरह से ये चलता जा रहा है और एक ऐसी सिचुएशन आएगी ये इस तरह से एक पैटर्न बन जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ नंबर ऑफ लॉक्स इन फर्स्ट रो फ्रॉम बॉटम। देखिए, मैंने बॉटम इसलिए लिखा क्योंकि हम बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो है 20, राइट। हमने फर्स्ट माना है उसको। और अगर मैं सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में 19 है, मतलब एक कम होता जा रहा है। तो सिमिलरली इट इज डिक्रीजिंग एंड इन हाउ मेनी रोज we can keep these 200 locks. So we can write it, let n number of rows of locks can be formed. हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पर n ऐसी रो बन सकती हैं, n रोज बन सकती हैं, और बाय यूजिंग एपी, जो एपी के रूल को फॉलो करती चल रही है, मतलब एक एक कम होता जा रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा एपी के फॉर्म में बात करता हूँ तो पहले क्या आएगा मेरे पास? 20, देन फिर 19, फिर 18, फिर 17। मैंने कितनी टर्म्स ली हैं यहाँ पर? n टर्म्स, और उन सब का सम आ जाता है 200। अब देखिए, मैं सीधा एपी पर आ गया हूँ डायरेक्टली, क्योंकि स्टेटमेंट्स तो हमने लिख लिया, सब कुछ गिवन पार्ट हो गया, क्या कर रहा है वो भी हमने कर लिया। अब यहाँ से क्लियर हुआ कि इसमें n टर्म्स है। आपको सम पता है, फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे मैं सीधा लिख देता हूँ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये मेरे पास है। n आपको नहीं पता क्योंकि वो तो निकालना ही है। 2a बिल्कुल 220 कर दीजिए, a की जगह फर्स्ट टर्म, n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर d आता है कि 19 माइनस 20, 19 माइनस 20 कितना हो गया? -1, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, राइट। देखिए, जब भी यहाँ 2 आ जाए तो ज़्यादा बेटर है कि इस 2 को इधर शिफ्ट कर दिया जाए। तो मैं सीधा n यहाँ रखता हूँ सिर्फ, और इसको इधर ही ले जाते हैं। इस -1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -n और +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 400 आपका, राइट। n की भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो जाता है 40n, और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n², और ये हो जाएगा +n, एंड इट इज 400। क्लियर? इक्वेशन यहाँ पर आपको दिखा होगा, फॉर्म हो रही है हमारे सामने, -n² प्लस 41n माइनस 400 में ले लेता हूँ। पूरे में माइनस से एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे फर्स्ट वाला पॉजिटिव हो जाए। और अब आपको पता है क्या करना है इसको। 400 के ऐसे फैक्टर करिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कि 41 आ जाए। 41 चाहिए मुझे कि 41 आए,
और मेरा मतलब फैक्टर भी हो जाए। 25 और 16 को आप मल्टीप्लाई करके देखिए जरा एक बार। अगर आप देखते हैं तो ये 0 8 आपके सामने 400 आता है। तो इट मीन्स जो फैक्टर हो जाएंगे 400 के वो 25 एंड 16 आएंगे। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, इसमें कोई बताने का नीड नहीं है। तो मैं यहाँ पर 25 एंड माइनस 16 एंड प्लस 400 इज इक्वल टू 0 में यहाँ पर। अब यहाँ पर n कॉमन आ गया, n माइनस 25 माइनस 16 भी कॉमन लेंगे तो ये n माइनस 25, और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो n की वैल्यू मुझे 25 मिलती है और n की वैल्यू 16। मुझे दो आंसर्स मिलते हैं, राइट। तो यू कैन टेक एनी वन आंसर। सो 15 और 16 एंड 25। अब आप यहाँ पर सोचना ये है स्टूडेंट्स कि आपके लिए कौन सा आंसर इसमें परफेक्ट होने वाला है। 25 वाला ज़्यादा परफेक्ट होने वाला है या फिर 16 वाला ज़्यादा परफेक्ट होने वाला है। विच वन इज अप्रोप्रिएट एंड विच वन इज करेक्ट, राइट। सो व्हाट वी विल डू, यू कैन टेक एनी वन। रीजन कि मे बी वी आर स्टार्टिंग, मे बी यू नो देर आर 16 और मे बी देर आर 25। अगर आप 25 रखते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक वो भी आती है, अगर आप बात करते हैं कि मुझे चेक करना है फॉर एग्जांपल इसको, कि मुझे चेक करना है कि सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, तो हाउ कैन यू चेक, हाउ कैन यू चेक? क्योंकि अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये आती है कि 25 अगर रो है तो 16 और 25 इक्वल कैसे हो सकती है। बिल्कुल लॉजिकली सही बात है कि दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, इनमें से कोई एक होगा जो करेक्ट हो सकता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अगर मैं n की वैल्यू 25 पुट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसी में ही पुट करता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर पुट करूँगा तो 25 और 16 मुझे सही वैल्यू देगा दोनों, राइट। दोनों ही करेक्ट वैल्यू देने वाला है। तो मुझे ऐसा क्या रिलेशन देखना है जिससे मैं इसको वेरीफाई कर पाऊँ। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि अब मुझे ये देखिए n 25 है, n 16 है, ये 25th टर्म ही मान के चलता हूँ। अगर मैं इसका 25th टर्म निकालने की ट्राई करता हूँ कि 25th जो रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे, तो आपको पता है कि a प्लस 24d होगा ऑब्वियसली। अब a का वैल्यू आपको पता है, a क्या है हमारे पास 20 है, राइट, प्लस 24d कितना है -1। अगर आप इसको देखें तो ये -4 लॉग्स दे रहा है जो अपने आप में मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस मतलब कि -4 लोग तो हो ही नहीं सकते, हमेशा पॉजिटिव भी हो सकते हैं। -4 लोग कैसे रख सकता है कोई, राइट। तो इस केस में 25 वाला मीनिंगलेस हो जाता है। और अगर मैं 16 लेता हूँ तो वो हो जाता है a प्लस 15d, 16 प्लस 15 इंटू -1, और यहाँ से मुझे एक पॉजिटिव 1 क्रिएट होता है। इसका मतलब है जो सबसे ऊपर रो रही होगी वहां पर सिर्फ एक लोग यहाँ पर रह गया होगा, और उसके बाद वो ऑब्वियस सी बात है वो 0 की स्टेट है। उसके बाद लॉग्स हमारे फिनिश और हम 200 लॉग सेट कर चुके हैं। तो इट मींस दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। 25 को आप बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन। ये बिल्कुल इसमें ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको दोनों आंसर करेक्ट लिखने पड़ेंगे वहां पर, और बाद में आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि कौन इसमें मीनिंगफुल करेक्ट बैठ रहा है जो कंडीशन को सही देगा, राइट। तो स्टूडेंट्स ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। ये पोटैटो टाइप रेस है। पोटैटो का रेस आई थिंक शायद आपने कभी देखा भी हो या कभी स्कूल में कभी कंडक्ट कराया भी हो। इसमें बड़ा एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि सपोज आपको यहाँ से पोजीशन दे दी जाए, आपको यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए कि भैया आपका ये टारगेट है, और आपको एक एक पोटैटो पहले आपको एक उठाना है फिर रख कर आना है। ऐसा नहीं कि आपको एक साथ उठाने हैं, पहले आप एक पोटैटो उठाओगे फिर रखने आओगे, फिर दूसरा पोटैटो लेने जाओगे फिर रखने आओगे, फिर तीसरा, इसी तरह से आपको रन करना है। और वहाँ पर तो टाइम पीरियड की बात होती है कि कौन कितने कम टाइम में इसको बकेट में डाल देगा। बट हमारा काम यहाँ पर वो नहीं है। हमारा काम ये है कि उसने पूरे इस प्रोसेस में, पूरे इस गेम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। और आप एक चीज़ देखना, जो पहला पोटैटो है वो बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पर रखा होगा। फिर उसके बाद जो बिटवीन पोटैटोज के बीच में जो कॉन्जिक्यूटिव जो डिस्टेंस है, राइट, वो 3 मीटर की है।
तो सिर्फ फर्स्ट पोटैटो ऐसा है जो 5 मीटर के डिस्टेंस पर है बकेट से, बाकी सब के पास 3 मीटर का डिस्टेंस है। तो ये था कि ये कंडीशन थी इसकी। तो पहले आप लिख देंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, आई थिंक it is a student, a girl or what, we don't know. Okay, by a girl, I am taking a girl here, by a girl to pick and drop potato in bucket, means वहां से पिक करना और ड्रॉप करना। इस पूरे प्रोसेस में अगर आप इसकी बात करें तो आप ये पहले यहाँ से यहाँ गई 5 मीटर का डिस्टेंस लिया, फिर वापस रखने गई, तो इट मीन्स टोटल जो डिस्टेंस कवर किया वो एक्चुअली में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, राइट। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनेगा कि अगर मुझे सेकेंड पोटैटो देखना हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट पोटैटो मैं लिख लेता हूँ क्योंकि फर्स्ट ज़्यादा बेटर है, फिर सेकेंड पोटैटो की बात करेंगे। तो सेकंड के लिए आप देखिए, पहले ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा स्टूडेंट, और ये 5 करेगा, 3 करेगा, मतलब टोटल ये 8 कवर करेगा ऐसा, 8 मीटर। फिर 8 वापस आ गया, तो टोटल कितना कवर किया 16, सो 8 + 8 16 मीटर। ओके, नाउ फॉर द थर्ड पोटैटो, देखिए 3 टर्म्स के बाद आपको एटलीस्ट ये पता लग जाता है कि ये एपी बन रही है नहीं बन रही, या कोई पैटर्न बनेगा नहीं बनेगा। 2 टर्म से कभी नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। यहाँ से देखिए 8 और 3 और चल गया 11 एंड 11 22, 11 + 11 22। अब देखिए जरा यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, ऐसे कितने पोटैटो है हमारे पास, 10 पोटैटोज है, राइट। टोटल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज 10, तो मीन्स उसको 10 बार आना जाना पड़ेगा। अगर मैं एपी की बात करता हूँ तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना, पहले उन्हें कितना किया उसने 10 किया, सेकंड में 16 किया, थर्ड में, और ऐसे कितने किया उसने 10 टाइम्स, ऐसे 10 बार। बट अगर आप देखते हो तो हर एक बार 6 का डिफरेंस आ गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एपी बन गई नहीं बनी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 16 - 10 दैट इज 6 मीटर। अब हमें सिंपल सी बात है, ये पता लग गया, हमारे पास एन भी है, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, हमारे पास डी भी है, फिर हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी हो गया। क्या किया जाए, सो वी विल राइट इट, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, n/2 2a + n - 1 × d। अब आपको कुछ नहीं है यहाँ पर, सीधा n की जगह तो 10 रख देना है, 2 × 10 + 10 - 1 × d इज 6। अब ये देखिए 5 और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 54, और यहाँ से आपको मिलेगा 74 × 5, सॉरी 370 मीटर की वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अगर वो 10 पोटैटो के लिए जाती है, राइट। ये था अगर वो 10 पोटैटो को पिक करने वाली है, राइट। नाउ अगर वहां पर सपोज n पोटैटो हो जाते फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर n हो जाता ऑब्वियसली, तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी। तो इट मीन्स इस तरह से आप एपी का जनरेशन करते हैं क्वेश्चंस को देखकर। सो क्लास, इसी के साथ ये एक्सरसाइज पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। और अगर इफ़ एनी डाउट अकर्स, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट रिप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।